वर्ड प्रॉब्लम्स में एक चीज याद रखिए, whenever a question is given, it will be written in English to you. In the CBSE paper, the Hindi question will also be there simultaneously. Try to read the question, understand the question. Now that understand is when you convert that question into your mother tongue or a language which you understand. And 90% for you, the language you understand is always English. That is more my fear part. Then you have to find what is the given data. Then some conditions will be given in the question. Those will help you to make the equation. ठीक है? यथार्थ कि आज देर से उठे हो क्या? हाँ, तुम्हारी आंखों में अभी भी तुम शरीर से यहाँ आए हो. चलें? So let's start with this problem. ये easy type problems है. ऐसे problems भी आ सकते हैं. Show that this and this are roots of the equation. Roots means what? They are the values of x, right? So how will you show that? You will assume you just substitute. कर पाओगे इस problem को? करके देखिए. हो जाएगा? Substitute करना आता है? So show that this. So how do you do it? You first you will substitute for solution. पहला वाला क्या करेंगे? लिखना बहुत जरूरी है. नहीं लिखोगे नंबर कटेगा लेकिन फाइनल में आपका. Substituting x equal to √2. So it will be √2 square. So your left hand side of the equation would be √2 square plus √2 multiplied by √2 minus 4, which is equal to 4 plus 2 minus 4. Oh, √2 square is 2. क्या लिख रहा हूँ मैं भी? Sorry. √2 square is 2 minus plus 2 minus 4, which is equal to 4 minus 4, which is equal to 0, which is equal to RHS. Similarly, and then you can say, therefore, x equal to minus √2 is a root of the equation. दूसरा वाला दूसरे को लेके कर लीजिएगा. In the second part, we will say substituting x equal to minus 2 √2. So now your LHS becomes minus 2 √2 whole square plus √2 into minus 2 √2 plus 4. Sorry, minus 4. Minus 4. So this becomes minus 2 का स्क्वायर हो गया 4 और √2 का स्क्वायर 2 8 और यहाँ कितना हो जाएगा? √2 हो गया 2 और ये हो जाएगा हमारा minus 4. Minus 4 ये हो गया हमारा 0 which is equal to RHS. So this is first one type of problem which is an easy one which you can do. ठीक है? चलें अगला. तुम देर से नहीं उठे हो, तुम देर से सोए हो. हाँ, देखा? इतना हमारी आंख पकड़ता है और फिर मेरे जैसे लोमड़ी के साथ कोई दो झूठ बोलने का कोशिश भी करता है ना. some बच्चास. somehow his face is not as per the face in my radar. यथार्थ का एक फेस है ना मेरे रडार पे. पहले मैंने इसको क्या बोला? तुम देर से उठे हो. फिर भी मन नहीं मान रहा है. That is not the exact diagnosis. Exact diagnosis, he has slept late and his condition will now deteriorate the more the sun shines bright. अगर आज ये भी एक है, अगर आज gloomy day होता ना, rainy, तब इसकी आंखों में देखो ये पोर्शन. नहीं, you look at this part of his eyes. These are his eyes ना. ये पोर्शन पे देखो, एक continuous forces are acting. Not on this part. Look at him properly. है ना? जो बंद करवाने की कोशिश है. ये नींद नहीं होने से होता है. अगर नींद होगा ना तो ये रिलैक्स मोड में रहेगा. अब ये सप्रेस हो रहा है. अब इसको कुछ मत करो. इसको एक प्लेट इडली में एक इडली और एक मैसूर बोंडा खिला दो और खिला के फैन चला के टीवी दिखा दो. ये 20 मिनट में सो जाएगा. फर्मेंटेड खाना है ना, उसका नशा आएगा और देखो अपना ये था. और फिर इसका लाई डिटेक्शन टेस्ट कर सकते हो. कल तुमने पढ़ाई की थी? नहीं किया था. ठीक है, चले आगे. चलिए ये वाला करते हैं. सॉल्व मिडिल टर्म स्प्लिटिंग. अच्छा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में या तो आपको रूट के साथ दे सकता है या फिर ऐसे देगा जिसमें बड़े बड़े प्रोडक्ट्स बनेंगे और बड़े बड़े प्रोडक्ट्स का मिडिल टर्म फैक्टर निकालना है. इसमें द ट्रिक इज ऑल अबाउट 31 you are going to multiply with 6. How much is it? 6 1s are 6, 6 3s are 18. Oh, 6 with 40. Sorry, मैं भी गलती.
अच्छा, दिस वाज इन दिस मैनर, राइट? तो इसको एक बार लिख लो. तो द इक्वेशन कैन बी रिटन एज, sorry, first rewrite the equation and write it in the standard form. So standard form would be 6x square minus 31x plus 40 is equal to 0. अब आपका पूरा ट्रिक जाएगा 6 4 जा 24, 240 के दो फैक्टर्स ढूंढने के लिए जो आपको 31 देता है. तो पहले इसके लिए आप क्या करोगे? टाइम सेविंग के लिए यू कैन डू प्राइम फैक्टराइजेशन, पर ये 2 2 2 2 लेके प्राइम फैक्टराइज मत करो, ये आपको हेल्प नहीं करेगा. और कुछ कॉमन सेंस याद करो. 240 तक जाना है और 31 लाना है. 31 30 के आसपास 15 होता है, से 15 15 15 इज हाउ मच? 225. 15 16 से 31 पैदा होता है. देखो 15 और 16 को ऐड करो, 15 15 ऐड करने से कितना होता है? 30. 15 से, और 15 16 को मल्टीप्लाई करके देखो, 15 6 जा 90 का 0, 9 कैरी ओवर, 15 1 जा 15 प्लस 9. और अगर ऐसे फास्ट नहीं भी आता है तो भी आप 240 को ना, डोंट ट्राई टू डू 2 1 जा 2 ऐसे करके मत करो. आप इसको बड़े बड़े नंबर से करना शुरू करो. 5 से करो. 5 से करेंगे तो कितना होगा? 5 4 20, 5 8 40, फिर 6 8 48, फिर यहीं से आ जाएगा 8 1 8. अब इनके बीच में आप कॉम्बिनेशंस ढूंढना शुरू करो. यहाँ आपको 15 16 नहीं भी दिख सकता है, लेकिन अगर इसको 6 को तोड़ दो तो 3 into 2 हो जाता है. 8 2 जा 16, 5 3 जा 15. If you break up this 6, then it becomes 5 into 3 into 2 into 8. ऐसे हिट एंड ट्रायल्स में देखना पड़ता है. ये 16 है, ये 15 है, बन जाएगा. उसके बाद आता है तो हाँ कर लेते हैं. फिर भी दिवांशु 6x स्क्वायर कौन बड़ा है इसमें? 15 और 16 में 16 बड़ा है, तो माइनस 16x और फिर प्लस 15x प्लस 40, माइनस 15x, सॉरी, माइनस 15x बड़ा छोटा से इससे कोई नहीं है, प्लस 40 इज इक्वल टू 0. ठीक है, आगे बढ़े. 6 और 16 कितना जाएगा? HCF 2x ही जाएगा. सो 2x कॉमन लेते हैं. 2x कॉमन लेने से 3x माइनस 8, तो इधर 3x माइनस 8 आना ही पड़ेगा. तो इसमें कितना लेंगे? -5 ले लेते हैं, -15 और 5 8 40. अब मगनलाल दिख गया तो मगनलाल को कॉमन ले लीजिए, और यहाँ पे बचा छगन और यहाँ पे बचा लाल. अब इसके बाद लिखिए आइदर 3x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी होती है? 8/3. यहाँ से x की वैल्यू कितनी होती है? 5/2. ठीक है, तो ऐसे टाइप प्रॉब्लम्स में मिडिल टर्म्स ये आप प्रैक्टिस कीजिए. अभी RS अग्रवाल ले लो, उठा लो, कर लो. और जिसमें RS अग्रवाल में वो रहेगा ना, RS अग्रवाल में एक एक्सरसाइज रहेगा, सॉल्व बाय मेथड ऑफ कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर. आप उसके प्रॉब्लम्स को या तो फैक्टराइजेशन से करो या फिर फॉर्मूला से करो. आपके लिए तो मेथड ऑफ कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर इज नॉट देयर इन योर सिलेबस. प्रॉब्लम तो वही रहेगा. और एल्स यू कैन गो टू कुमारस्वामी सर्स बुकलेट आल्सो एंड डू फ्रॉम देयर आल्सो वेरेवर यू विश. पर प्रैक्टिस करते रहिए तो ही आपको ये सब क्लियर होता रहेगा. मींस द मोर यू एनकाउंटर द मोर यू गेट. 240 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, रूट्स होने से क्या है. चलें इसमें एक और टाइप की प्रॉब्लम देखते हैं. आइए, ये टाइप प्रॉब्लम जैसे, ठीक है. अब ऐसे टाइप प्रॉब्लम्स भी आते हैं, जैसे दिस इज अ वेरी नाइसली रिटन प्रॉब्लम, x इज नॉट इक्वल टू -3. क्यों? ये जनरली ना इंडियन बुक्स में इनको पत्ता नहीं देता है. ये वेरी इंपॉर्टेंट है. -3 का मतलब ये अनडिफाइंड हो जाएगा अगर x -3 है, मतलब आप x को -3 नहीं ले सकते. अब ऐसे प्रॉब्लम देखिए, इनको दो तरीके से हम कर सकते हैं. या तो प्रॉपर सिंप्लीफिकेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्विंग इज अ टेस्ट ऑफ योर एल्जेब्रल स्किल्स एंड योर, बट यहाँ कुछ एक रिलेशन आपको देखने में मिल रहा है. अगर आप अच्छी तरह देखो ये ट्रिकिंग कैसे कर रहा है, ये और ये रेसिप्रोकल है. तो ऐसे प्रॉब्लम्स को ना डायरेक्ट सॉल्विंग करने से आपका बहुत टाइम जाएगा. आप इनमें कुछ एजम्पशंस लो. लेट से y और से m जो भी आप एक ले लो इज इक्वल टू 2x माइनस 1 बाई x प्लस 3. ये कर लेते हैं. समझ में आया? अब आपका गिवन इक्वेशन कैसा हो जाता है? गिवन इक्वेशन
कैन बी रिटन एज, आपका मामला इजी हो जाता है. यू कैन राइट दिस इक्वेशन एज नाउ व्हाट, 2y minus 3/y. This is, if this is y, this is 1/y. Clear? अब देखो इजी हो गया, इक्वल टू 5. अब क्या करें यहाँ पे, 2y² minus 3 इज इक्वल टू 5y. स्टेप जंप कर रहा हूं, आशा करता हूं समझ में आ रहा है. y को एलसीएम लेंगे तो 2y² minus 3 इज इक्वल टू 5y. मेरे जो 9th का बैच है ना सीबीएसई, उसमें अगर आप किसी को पहचानते हो तो उनको थोड़ा सा is your duty as elders to tell that life is not so easy. उनको थोड़ा पढ़ने बोलिए. हाँ, वो बहुत ज्यादा, वो बहुत बड़ी डांट पड़ी है उन लोगों को उस दिन. डांट ही नहीं, डांट का क्लिपिंग भी गया है पेरेंट्स को. उनको बोलिए थोड़ा सा मन लगाने के लिए, क्योंकि वो लोग नहीं पढ़ रहे हैं. एंड दैट इज माई, एंड दे आर लीस्ट पार्टिसिपेटिव बिकॉज दे डोंट रीड एंड कम. वो सोच रहे हैं अभी भी 8th में वही है, कोल एंड पेट्रोलियम जैसा, कोल्टार कोक और कोल गैस पढ़ने से नंबर मिलेगा. चलिए सॉल्व करते हैं इसको. 2y² minus 5y 3 इक्वल टू 0. फटाक से सॉल्व करके मुझे y के वैल्यूज बोलिए तो बच्चा क्या क्या होता है. आप कुछ सॉल्व कीजिए. यहाँ पे हमें कितना मिलेगा, -6 मिलेगा. -6 लाने के लिए हमें क्या है, -5 लाना है, यानी कि -3 लेंगे और -2 लेंगे. लेके निकालिए तो फटाक से बोलिए y की क्या वैल्यूज है. 6 - 1 आप बोल रहे हैं, 1 और -6 बोल रहे हैं. चलिए कोई और भी चेक कीजिए. लेट्स वेरीफाई दिस. 1 and -6. एनीवन एल्स? 3 and -1/2. चलो होल्ड करते हैं, चेक करते हैं. 1/2 right? Which one? He said -1/2. He said -1/2. 1/2 तो उसका आएगा ही नहीं, ये आएगा ही नहीं आपका. चेक कीजिए, कोई और भी चेक कीजिए क्या आ रहा है आंसर. ए अंगद, वो जो पेन यूज कर रहा है ना, पेंटोनिक वाला है ना, उसको छोड़ो, वो बहुत पतला पेन है. मतलब चाहिए तो मैं आपको इतना दे सकता हूं. आपको दिस मच स्टॉक एट माय होम ऑफ पेंटोनिक. गेट इनटू लिटिल बिट मोटा पेन. वो that will not be come, that's not good. Even slowly what will happen, your writing will increase as you go. आपके फिंगर्स में पेन आएगा. जब हम क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, राइट ग्लव्स, राइट बैट, राइट हैंडल होना चाहिए, नहीं तो दर्द होगा आपको. वो छोड़ दो पेन बेटा, वो अच्छा नहीं है. वो हाउसी खेलने के लिए अच्छा है, इन्हें पार्टी वार्टी कट कर. थोड़ा पेन का एक बेसिक डायमीटर होना चाहिए. जब भी आप ये इक्वेशंस करते हैं ना बेटो, इसमें और डाला कीजिए, और ये अदरवाइज हाँ implies that is mandatory. 3/2 हाँ, ये क्या लिखे हो, ये तो एकदम कन्नड़ लिपि जैसा लिख दिए हो तुम. it's the zeros are 3 and और क्यों नहीं लिखते हो आप लोग है ना स्कूल में. आई डोंट नो, देयर इज ह्यूज प्रॉब्लम. ये भी रॉन्ग है, ये तुम एरो देते हो. एरो इज नॉट द करेक्ट साइन. नो, आवर स्कूल और टीचर्स में वेरी पर्टिकुलर. अगर ये सिंबल नहीं है ना, और नंबर काट देते थे. हाँ, काटेगा ही ना, रूल है ना एक. तुम नाक खुजला के थोड़ी खाना बना सकते हो. ये डालिए, not for 1. This is wrong. I will deduct marks if I check your copy. See, because that habit has died in you all. This means implies that this who gave you the right to write this step? Tell me. This is a simplified form. That's how it goes. अगर आप और नहीं दे रहे हैं, then you तो कहते हैं ना, महंगे स्कूलों में पढ़ते हो, गलत चीज सीखते हो. हाँ, क्या हुआ, कितना आया? 3 and -1/2. ठीक है, 3 आ गया. और एक आंसर कितना आया, -1/2. ठीक है. अब हम तो y तो हमने एज्यूम किया था, y तो हमारा आंसर नहीं है. हमें अभी y को तो विल टेक फॉर y इक्वल टू 3. सो व्हाट डज आवर एक्सप्रेशन बिकम? 3 इज इक्वल टू 2x - 1 by x plus 3. तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया. यहां से x की वैल्यू निकालिए बच्चा. 3x + 9 = 2x - 1. देखो, और अक्षर मैं तो ये नहीं लिख के मेरा अगला स्टेप जाता ही नहीं है, मेरी आदत बन चुकी है. 3x - 2x x = -1 - 10 होगा शायद.
आपका प्रॉब्लम करेक्ट है, बस ये हाँ बोलो y क्या है? What is the value of y? Can't we get one answer? What is, have I written the? So I have written -1/2. हाँ तो let's get one value ना. गलत सॉल्व किए हो और क्या? How many of you have got this answer? देखो अभी भी किसी को should do you want me to solve this also? क्या यार ऐसे मैथ्स तो नहीं होता है इतना देर से 2y² -5y को कैसे लिखोगे? -2y -3y -3 = 0 करेक्ट है ना? अब क्या होगा यहां से क्या कॉमन लोगे? 2y कॉमन ले लो, y -1 हो गया यहाँ पे और यहाँ पे कितना होगा? y -1 आना ही पड़ेगा है ना? तो यहाँ पे कितना कॉमन लेंगे? हाँ No, sir, you can't take -2 and -3. हाँ अभी Take 1 and 6. अभी यहाँ पे देखो हाँ वो इश्यू -3 और -2 हम नहीं ले सकते। -3 -2 लेने से क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट नहीं होगा, तो जिस यहीं पे गड़बड़ कर दिया है आपने। तो यहाँ पे योर प्रोडक्ट विल बी -6 and +1 है ना? तो दिस बिकम्स 2y² -6y प्लस y -3 = 0। अब क्या हो गया? अब यहां से 2y कॉमन ले लें, y -3 और इधर y -3 आना ही पड़ेगा, तो इधर +1। डिस्टर्बिंग एजेंट। अब और कुछ प्रॉब्लम है तुमको? हो गया? हाँ चलो x की वैल्यू कितनी आई? -10 ठीक है ना? x की वैल्यू आई -10, ये एक वैल्यू आया, x की 2 वैल्यू होनी चाहिए। अब दूसरा वाला क्या लिखेंगे? फॉर y = व्हाट इज द अदर वैल्यू यू गॉट? -1/2। सो विल राइट -1/2 = 2x - 1/x + 3। तो इसको भी सॉल्व कीजिए एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x। सो व्हेनेवर यू गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहले ही मेहनत करना, किसान मेहनत करेंगे करके एकदम मत जाओ, पहले देखो कुछ रिलेशन बन रहा है क्या। ये प्रॉब्लम ऐसे करोगे तो ग्रैंडमदर रिमेम्बरिंग केस हो जाएगा, नानी याद आना। लेकिन इसको एजम्पशंस करके करेंगे तो ये प्रॉब्लम इजी हो जाएगा। जैसे किसी ने आपको एक प्रॉब्लम दे दिया, ये करते रहिए। मान लो आपको किसी ने प्रॉब्लम दे दिया y⁴ -2y², ठीक है, माइनस से प्लस से 4 = 0। इसको सॉल्व करने दिया आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। मान लो ऐसे ही बता रहा हूं, ये तो क्वाड्रेटिक है ही नहीं, क्वार्टिक इक्वेशन है। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? क्या हो गया अन्या, इतनी लेट में ज्वाइनिंग है? मैं आपके सत्य बोलने को मतलब प्रशंसा करता हूं, पर लेट उठी तो कैसे हो सकता है बालिका? y क्या है? y⁴ 2y²। इसमें आप कैसे करोगे? लेट y² = m, देन दिस इक्वेशन बिकम्स m² - 2m प्लस दिस, क्वाड्रेटिक बन गया। ऐसे भी क्वेश्चंस दे सकते हैं ट्रिक करने के लिए। डिड यू अंडरस्टैंड? ये वाला सबको समझ में आया? दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। As you will say that our chapter is all about quadratic, how can we solve it? Simple. Let y² be equal to some t. So this is t² - 2t + 4 = 0, है ना? बड़ा मजा है स्टूडेंट होने से। स्टूडेंट लेट ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि लेट ज्वाइन करके भी क्लास लाइव है ज्वाइन कर। मैं लेट नहीं आ सकता ना, ऐसा हो सकता था आप लोग ज्वाइन करिए और मैं लेट ज्वाइन किया, विचार ठीक नहीं है। जस्टिस शुड बी इक्वल ऑन बोथ साइड्स। चलें, मैं तो यूट्यूब देखते देखते लेट हो गया। सुबह उठ के सारे फॉरेन चैनल के न्यूज़ेस देखता हूँ, देखते देखते एक दो में गुस्सा आ रहा था ये होते। फिर माय वाइफ कम्स एंड टेल्स मी तुम्हारा क्लास नहीं है आज। फिर मैं घड़ी देखा, घड़ी हो चुका था ऑलरेडी 8:35। देन हैड माय शावर एंड ऑल एंड हो गया। चले आगे। तो ऐसे टाइप प्रॉब्लम्स में हमेशा आंख खुले रखिए कि यहाँ पे डायरेक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पर इसमें केस क्या बन रहा है। चलिए एक और प्रॉब्लम देखते हैं।
फाइंड, ये आ गए हम डिस्क्रिमिनेंट टाइप प्रॉब्लम्स में. डू यू नो व्हाट इज अ डिस्क्रिमिनेंट? डिस्क्रिमिनेंट का इसका बेसिक ज्ञान क्या है? डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0. अच्छा, ये प्रॉब्लम में हर बच्चा कर लेगा, बट इफ आई टेक योर कॉपीज फॉर चेकिंग, हर कॉपी में नंबर कटेगा. बिकॉज आप क्या करोगे, आप इसमें सीधा लिखोगे d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. मैं कहूंगा भाई तुमने b किधर दिख गया, b तो मेंशन ही नहीं है, a तो मेंशन ही नहीं है, सी तो मेंशन ही नहीं है ना. वही करने वाले थे. तुम्हें प्रॉब्लम सबको समझ में आ गया है. इस प्रॉब्लम को लिखने में नाच जाएंगे. दिस इज लाइक व्हाट आई एम गिविंग यू टू ईट इज वेरी सिंपल, सम बिग बीन्स, बट यू आर ईटिंग इट इन चॉपस्टिक्स में. खाना है, खा नहीं पाओगे, हाथ से नहीं खाना है. तो आइए इस प्रॉब्लम को करने की प्रणाली समझते हैं. इसको कैसे करते हैं. सबसे पहले आप लिखिए कंपेयरिंग with standard form ax square plus bx plus c equal to 0. We have a is equal to, कंपेयर करो अभी, a कितना है बेटो 3, b कितना है -4√3 और c कितना है +4. ठीक है ना. अब आपको होता है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स. अब आप सॉल्व कीजिए. डिस्क्रिमिनेंट लिखिएगा, डी मत लिखिएगा, डी मतलब डाकू. डिस्क्रिमिनेंट डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. देखो तो वेदांत साहब, आप देखिए बी स्क्वायर, कोई टेंशन नहीं है. बी स्क्वायर क्या है ऑलरेडी. See, if you are little bit habituated to writing computer programs, whenever you write a computer program, you have got a header library जहां आप variables को declare करते हो. So and so is character, so and so is string. और अगर और high end C वगैरह में प्रोग्राम करते हो, C प्लस वगैरह, आप लिखते हो hash include वो फाइल. So that is called, देखो वो भी, the computer program is a very nice way of how to write a disciplined thing. आप जब तक उसको डिफाइन नहीं करोगे, आगे प्रोग्राम में उसको उठाएगा ही नहीं वो, क्योंकि आप तो गधे से काम करा रहे हो ना. इंसान और रोबोट में फर्क क्या है. तपती गर्मी में अगर आप रोबोट को बोलोगे 1 गिलास ठंडा पानी दीजिए, वो आपको ठंडा पानी लाके देगा. और अगर आप दीपांशु को बोलोगे, दीपांशु भी लाएगा. लेकिन अगर तुम्हारे सर से पसीना गिर रहा है, तो अगर दीपांशु के हृदय में थोड़ा भी दया है, पूछेगा सर और 1 गिलास दूं. रोबोट नहीं पूछेगा, क्योंकि उसको प्रोग्राम नहीं किया है. ये बात अलग है कि दीपांशु और रोबोट एक ही जैसा है. दीपांशु शायद गर्मी देख के उबला हुआ पानी लाके आपको देगा कि सर उबलते हुए पानी को पीजिए, है ना. समझ में आया. तो नाउ यू डू द प्रॉब्लम. अब चलो डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व करो. कितना आया, बी स्क्वायर कितना है -4√3 होल स्क्वायर -4. ए कितना है बेटो 3 और सी कितना है 4. कितना आया इसकी वैल्यू 48. D is equal to 0. So you write, since D is equal to 0, given equation has equal roots. And hence solve it. अब यहां से don't try to go for factorization. Equal roots, अच्छा दूसरा एक है, अगर equal roots है, इसको factorization करने की कोशिश. और अगर आप factorization कर रहे हो, 1 minute, how to now solve the roots. I know all of you all will be able to solve the roots. आप इसको factorization कर दोगे, या फिर आप क्या कर सकते हो, ऑलरेडी बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू तो आ गया है, मेन फॉर्मूला में लगा दो. लेकिन दिखावों पे न जाओ, अपनी अकल लगाओ. ये क्या है, इक्वल रूट्स. ये साइन क्या है, माइनस. ये इक्वेशन a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मेट में होना ही पड़ेगा. a माइनस बी होल स्क्वायर इज a माइनस बी इंटू a माइनस बी. सो यू गेट इक्वल रूट्स. अब इस आपका इक्वेशन क्या है जरा बताइए. 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0, है ना. तो 3x स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं √3x होल स्क्वायर, और 4 को लिख सकता हूं 2 स्क्वायर, और यहां बाकियों में मिलना ही पड़ेगा 2a इंटू b. देखो तो, ओ ये माइनस होगा खाली, सॉरी. ठीक है, देखो तो 2ab हो गया.
बिकॉज इट्स इक्वल रूट्स ना। अगर यहाँ प्लस रहता तो a प्लस बी होल स्क्वायर होता, तो तुम्हारा ये क्या हो गया, √3x + 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू -2/√3। यही आपका आंसर है। ये x1 हो गया, x12 बोथ विल बी इक्वल टू -√2। मैंने स्टेप जंप किया है, आप जंप मत कीजिए। डिड यू अंडरस्टैंड? दिस इनटू दिस इक्वल टू 0। हाँ हाँ, अरे यार आज क्या हो गया, टुडे आई एम मेकिंग टू मच ऑफ मिस्टेक्स यार, सॉरी यार। माइनस, सम डेज ना दिमाग ही सक नहीं रहता। ओके, और x12 थैंक यू इज इक्वल टू 2/√3। ये इजी वे है, आपको टाइम सेव होगा, वरना b² - 4ac भी आपने सॉल्व किया है, आप उससे भी सॉल्व कर सकते थे, आपकी मर्जी, बट दिस विल अलाउ यू टू सेव सम टाइम। ठीक है, ये टाइप के प्रॉब्लम्स बहुत आते हैं। ऑब्टेन द नेचर ऑफ द रूट्स, ये कम आएगा, इससे थोड़ा सा अलग। मैक वेज बर्गर, मैक महाराजा वेस्ट बर्गर आएगा, इसके बाद डबल टियर वाला आएगा। देखिए वो वाले, ये वाले प्रॉब्लम्स ज्यादा आएंगे। के का केस सॉल्व करना है कि के का वैल्यू है कि रियल रूट देगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम को देखते ही तुम फिर से शुरू हो गए गंदी तरीके से करने का, लेकिन गंदा तरीके से आप नहीं करेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म, कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म। आइए स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करें। ax² + bx + c = 0। पहले इक्वेशन लिख लीजिएगा एक बार, हाँ, यू शुड राइट द इक्वेशन वंस एंड देन ओनली यू कंपेयर, अदरवाइज व्हाट आर यू कंपेयरिंग, माय हेड और योर हेड, वी डोंट नो। a is equal to k + 4, b is equal to k + 1, c is equal to 1। ठीक है ना, अब आपको बोल दिया है कि they have equal roots, so you write discriminant हाँ, two real equal roots, discriminant d is equal to क्या है बेटा, b² - 4ac, and real and equal roots, हाँ, real and equal roots, and discriminant will be 0 as given equation has, वही इक्वल मतलब रियल एंड इक्वल, इमेजिनरी तो नहीं होता है, हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है ना, तो आ जाइए, अब आप कीजिए b² - 4ac, और यहाँ पे b² - 4ac को लिख लीजिए एक बार। b² - 4ac मतलब k + 1 होल स्क्वायर -4 इंटू k + 4 a इंटू c की वैल्यू कितना है 1 इज इक्वल टू, सॉरी कितना ही लिखता हूं, डिस्क्रिमिनेंट। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, k + 1 होल स्क्वायर -4 इंटू k + 4 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा फिर से, k² + 2k + 1 - 4k - 16 = 0, और k² 2k और -4k -2k है ना, +1 और -16 से बनता है -15 = 0। जरा देखिए तो बच्चा, 5 3 = 15 और 5 और 3 से 2 का जन्म भी होता है, और यहाँ पे लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, सो यू कैन बी फास्टर। व्हाट इज योर प्रोडक्ट, योर प्रोडक्ट इज -15। -15 के कैसे लोगे आप, -5 लेंगे और +3 लेंगे, तब जाके वो नेगेटिव आएगा। सो x - 5 x + 3, यानी k की वैल्यू 5 और -3 आना चाहिए। चलिए चलिए, हमारी तरफ देख के क्या होगा, हमारे मुंह में थोड़े ना मोतीचूर के लड्डू लगे हैं। क्या हुआ यथार्थ, मैंने कुछ गलती किया क्या, मेरा भी आज गाड़ी नहीं चल रहा है ठीक से।
ये ठीक है ना, यहां तक ठीक है ना। तो -15 के फैक्टर्स क्या होंगे, -5 और +3, तो आपका आंसर बेसिकली आ जाएगा 5 एंड -3। के की वैल्यू 5 हो सकती है, के की वैल्यू -3 हो सकती है, तभी जाके इस इक्वेशन का रूट होगा 0। कैन यू नाउ राइट दैट? सो यू आर सॉल्विंग इट। इसको सॉल्व करने से के की वैल्यू क्या आती है, के इज इक्वल टू क्या आया आरव, 5 एंड -3। ये तो बताया था ना आपको, लीडिंग कोफिशिएंट जब 0 होता है फैक्टर्स का जस्ट ऑपोजिट कर दो, 5 and -3. See, whatever you get here, that is your factor, x minus 5, x plus 3. So x minus 5 equal to 0 means x equal to 5. तो यहाँ पे लिख दीजिए the value of k should be -5. यहीं पे अच्छे भाई, आप प्रैक्टिस करोगे ना टाइमली, आपको बहुत टाइम मिलता है, आप लेके सुंदर से ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर दीजिए, k should be equal to -5, k should be equal to +3 for above 5 and 3। हाँ ठीक है, अरे वो हाँ ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना, तो वहां से लिख लो यार, उस जो सिखा रहे हैं उस पर ध्यान दे। -3 for above equation to have real and equal roots। ठीक है, ये टाइप के प्रॉब्लम्स आर वेरी मच एक्सपेक्टेड, ये बढ़िया 4 मार्कर्स में बन जाते हैं। चलिए आगे, अब वर्ड प्रॉब्लम में आते हैं। यहाँ एक ही चीज है, इंग्लिश को पढ़िए हिंदी में या अपने मातृभाषा या कंफर्टेबल लैंग्वेज में तोड़िए और फिर कीजिए। द सम ऑफ टू नंबर्स इज दिस, फाइंड द नंबर्स। नाउ सी, you will first get very much this quadratic equation word problem last year was reintroduced। last to last year word problems of quadratic equation नहीं था, बीच में निकाल दिया था कोविड के टाइम पे, अभी फिर से इंट्रोड्यूस्ड है। कभी कभी मैं डाउट होता है कि ये प्रॉब्लम अगर आ गया, हम कैसे जानेंगे कि ये क्वाड्रेटिक में है या लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स में है। सो देयर इज ऑलवेज अ कैच। यूजुअली एज प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व बोथ वेज। आप करते ही आपको समझ में आ जाएगा ये क्वाड्रेटिक में है कि लीनियर है। कुछ प्रॉब्लम्स लीनियर से सॉल्व नहीं होते हैं, लीनियर से सॉल्व, और ये द नेचुरल नंबर्स इज दिस एंड द प्रोडक्ट इज दिस, लीनियर से भी करेंगे तो भी ये क्वाड्रेटिक में ही जाएगा। ठीक है, तो फाइंड द नंबर्स, इसे हम क्वाड्रेटिक वे में करेंगे तो हमें 2 वेरिएबल हम ले नहीं सकते हैं। हम कैसे लिखेंगे, लेट वन नंबर बी x। ठीक है, द सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर्स इज 27 and their product is 182। now your wish, whichever way you want to go, therefore the other number must be equal to 27 minus x कर सकते हो, 182 by x भी कर सकते हो, उसमें ज्यादा इजी हो जाएगा। is 182 upon x, y given product of numbers is equal to कितना, 182। now you can write here, nowadays they use this word ATQ according to question, the sum of the 2 natural numbers, so that is x plus 182 by x। एक्चुअली ये जब भी हम ऐसे प्रॉब्लम्स करते हैं ना, यहाँ ये भी लिखना चाहिए x belongs to the natural number family, मतलब x cannot be a integer and x cannot be a rational number, cannot be a whole number, x belong। हाँ क्या बोल रहे बेटा, क्या 82 कहाँ, 82 is according to question, according to question। ठीक है, now you need to solve this, this sum is equal to how much बेटा, 27। अब आपका इक्वेशन बन गया। इक्वेशन कैसा है, x स्क्वायर प्लस 182 इक्वल टू 27x और x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। याद रखिएगा, ऑल टाइप ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स में इक्वेशंस काफी आसान बनते हैं, इक्वेशन को बांधना ही बेसिक कला है। इसको आगे यहाँ टाइम पास नहीं करेंगे, आप सॉल्व कर ही सकते हैं। क्या वेदांत, कुछ टेंशन हो रहा है? नहीं, कुछ ये हो रहा है कि समझ में आ रहा है? तो रुद्र समझ में आ रहा है ना ये वाले?
रुद्र बेटा समझ में आ रहा है? तो समझ में आ रहा। बहुत बढ़िया बात है। नहीं, आप बीच में थोड़े से स्थगित होकर रिस्पॉन्स दे रहे थे तो मुझे लगा we can solve it. Shall we go to the next question? ये सब घर में आपको ऐसे भी you are supposed to do it. चलो नेक्स्ट। ये ऐसे प्रॉब्लम करने के लिए आपको केजी क्लास में जाना पड़ेगा थोड़ा सा, जब ये, क्योंकि ये हम डबल आपको इसमें भी नहीं सिखाएंगे। 2 डिजिट नंबर, पहले इसका फंडा सीख लो, आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आइए चलते हैं ग्रेड 1 में। 2 डिजिट नंबर में 2 डिजिट होता है, एक को टेंस कहा जाता है, एक को यूनिट्स या वंस कहा जाता है। अगर कोई नंबर मिले आपको 43 तो वो नंबर होता है 4 टेंस एंड 3 वंस और 3 यूनिट्स हम कहते हैं ना। तो 43 है एक्चुअली 40 गुना 3, सॉरी 4 गुना 10, 4 गुना 10 प्लस 3 गुना 1, क्योंकि 1 यूनिट्स एंड 4 टेंस। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं हमारे प्रॉब्लम में। A 2 digit number is 5 times the sum of its digit and also equal to 5 more than twice the product of its digit. Find the number. हमें बोला है find the number। तो नंबर पता करने के लिए हम पहले सबसे पहले क्या करेंगे, फिर धीरे धीरे क्वेश्चन को पढ़ेंगे। सॉल्यूशन, लेट द डिजिट at units place be equal to x। मतलब ये हमारा नंबर है, हमने यहाँ पे इसको x मान लिया है, यूनिट डिजिट। क्या बोला है? A 2 digit number is 5 times the sum of its digit, 5 times the sum of its digit, यानी कि जो नंबर फॉर्म हो रहा है that is 5 times the sum of its digit, ठीक है। and also equal to 5 more than twice the product of its digits। find the number। क्या इसमें अब सोचो, ऐसे क्वेश्चन में यूनिट्स और डिजिट्स लगाने की जरूरत पड़ेगी। 2 digit number is 5 more than the sum of its digits। अब आप ये वाला नंबर कहां से लाएंगे, मुझे वो चाहिए। There is 10x. There is 10 times the number. 2 digit number, the overall number is how 5 times the sum of its digits। थोड़ा y लेके एक और y लगा ले, देखते हैं, कोई तो उपाय तो नहीं है हमारे पास, ठीक है। कोशिश करते हैं, आ जाओ। लेट द डिजिट एट टेंस प्लेस बी इक्वल टू हाउ मच, y। ये y हो गया, ठीक है। अब नंबर क्या है, नंबर फॉर्म्ड हो जाएगा 10y प्लस x। समझ में आ रहा है? अब ATQ लगाएंगे हम। ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें कहता है 2 डिजिट नंबर, यानी कि हमारा जो नंबर है 10y प्लस x is 5 times the sum of its digit, 5 times the sum of its digits, है ना, and 5 more than the product of its digits, 5 more than the product of its digits। ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल प्रॉब्लम बन रहा है। देखो दूसरा एक क्राइटेरिया क्या बन रहा है, यहां से एक्चुअली आप y को निकाल सकते हो इन टर्म्स ऑफ x। सो बिकॉज वी आर डूइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, otherwise if you are doing it linear equations, this problem can be done much more easily in linear equations, but since we are doing quadratic, let's do quadratic। ठीक है, यहां से y की वैल्यू निकाल सकते हैं, 10y प्लस x इक्वल टू 5y प्लस 5x, यानी कि कितना आया बेटा, 10y माइनस 5y, 5y इज इक्वल टू 4x और y इज इक्वल टू 4x बाई 5। देखो तो ये आया कि नहीं आया। अगर ये आया है तो आप यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर y, 4x बाई 5। अब और इसको देखने की जरूरत नहीं है आपको। Why I am doing it like this? Because this is quadratic equation in one variable। बच्चा ये इतना तक सबको आया, y is equal to this, हाँ या ना तो बोलो, आया, हाँ बहुत अच्छा। पता नहीं चुप्पी साथ के तुम लोग को कहाँ मजा आता रहता है। आइए
अब दूसरा वाला कंडीशन लगाते हैं। दूसरा कंडीशन क्या दिया है? व्हाट इज द नेक्स्ट कंडीशन? अगेन एज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो यहाँ ये आने के बाद आप फिर से नंबर फॉर्म ले लीजिए। अब नंबर फॉर्म क्या हो गया? 40x by 5 plus x. Can we get the number? It will be 60x by 5. Sorry, not 60x, 45x by 5. Have you understood this? Now, since you have abolished y, let's get the number. The number would be 4 times the tens digit plus the units digit. 4 times the tens digit, 4x by 5 plus, oh no, 10 times, sorry. एक तो ना तुम लोग इतना चुप हो जाते हो, पता नहीं मेरा भी ये चला जाता है। It will be 4x plus 5 by 5 into 10 plus x into 1. This is your number, which is 40x by 5 plus x, which is equal to 45x by 5. समझ में आया? अरे भाई कुछ हाँ ना बोलो, बहुत अच्छी बात है। Now you use the second condition. It says that the 2-digit number is equal to 5 times this and is also equal to 5 more than twice the product of its digit. तो twice the product of its digit पहले करो। Twice the product of the digit. What is the product of the digit? 4x by 5 into x. This is product. इसका twice and the number is 5 more. Look at here. The number is, ये number 5 more है। तो इन दोनों को इक्वेट करने के लिए या तो यहां से 5 घटाइए या इसके साथ 5 ऐड कीजिए, जो आपको पसंद है। तो मैंने यहां पे 5 ऐड कर दिया। एंड दिस इज द नंबर। व्हाट इज द नंबर वी गॉट? 45x by 5. How many of you understood this step? If you have not understood, let me know. हमें कहता है the 2-digit number, देखो बेटा, ये जो पहला पार्ट है ना, ये पहला पार्ट तो हम कर चुके हैं, ये पहला पार्ट हो चुका है। अब दूसरे पार्ट पे देखो, 2-digit number is equal to 5 more than twice the product of its digit. 5 बड़ा है किससे? प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट के दुगने से। तो प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट ये हुआ, इसका दुगना ये हुआ, और ये नंबर 5 बड़ा है, मतलब ऐसा है अभी, तो हमने इसके साथ 5 जोड़ दिया, इक्वल हुआ। या आप इसके साथ 5 घटा भी सकते थे, जो आपकी मर्जी। सॉल्व करें। तो बैठे क्यों हो? हमारा इंतजार कर रहे हो के? सर मेहनत वाला काम आप ही कीजिए, हम तो यहाँ अंडे देते हैं बैठ के। अंडे तो 45x by 5 इज इक्वल टू, यहाँ कितना होगा? 8x स्क्वायर by 5 plus 5। ठीक है, फटाफट कैसे करेंगे इसको? 45x by 5 इस साइड में हो जाएगा 8x स्क्वायर, इधर हो जाएगा 25 और इधर हो जाएगा, उफ ना गलती हो रहा है ना आज, 45x by 5 इज इक्वल टू दिस बाई अनदर 5। तो 5 और 5 कैंसिल हो गया। अब आपका इक्वेशन बन चुका है। योर इक्वेशन इज 8x स्क्वायर माइनस 45x एंड देन प्लस 25 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कीजिएगा। हाउ मच डिड यू गेट? 5 and 5 by 8. 5 and 5 by 8। अच्छा, 5 and 5 by 8। अब digit cannot be a fraction, so you will reject 5 by 8। इसमें 2 आंसर्स आएंगे। 2 digit नंबर बोला है ना, डिजिट तो फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। सो इफ यू एक्सेप्ट, आई डोंट नो, वी हैव टू चेक। ये वही हो गया। दिस आर अनकन्फर्म्ड सोशल प्लेटफॉर्म रिपोर्ट्स। y इक्वल टू 5 and सॉरी x इक्वल टू कितना आया बेटू? दिस इज Arab's call out. He has got x equal to 5 and how much? अरे बोला करना, ऐसा सैटेलाइट मिस क्यों करता है? मैं सॉल्व नहीं कर रहा। हाँ तो बोलो ना, गलत होगा ज्यादा से ज्यादा, इसमें क्या तुम लोग यार। यही चीज हुआ उस दिन 9th के साथ।
एब्सोल्यूट साइलेंस हो जाते हो, बोलो ना आई एम राइटिंग व्हाट फीडबैक यू आर गिविंग मी, इफ आई सॉ मैक्सिमम यू विल बी रॉन्ग, somebody else will, he also gave a wrong answer, somebody corrected, we'll wait for someone, either someone will get a same answer or not, and others, वेदांत जैसे तुम है ना, तुम अभी इस आंसर को देख के हाथ दोनों ऊपर उठा के कपिल मुनि की तरह नीचे देख रहे हो, तुम सॉल्व करो ना, अपना आंसर निकालो। अभी तुम बैठ के वेरीफाई वहां क्यों लिख रहे हो, क्यों पीछे लिखोगे? खाना खाते वक्त मुंह में कुछ आ जाता है, डाइनिंग टेबल में फेंकते हो क्या? देन गंदी आदत है जितनी। अच्छा, एक और कॉल आउट आया, दीपांशु हैज आल्सो गॉट दिस आंसर। ऋषभ देख तो क्या आया है, 5 and 5 by 8। तो इतना देर मुंह में स्टेपलर मार के क्यों बैठे हो, बोलो ना आंसर ठीक है, हम तो उसी के लिए रुके हैं। एक बच्चे ने लिखा है, आप भी कंफर्म करो। नहीं मैं चुपचाप रहूंगा, क्या जानी मेरा गलती आ जाएगा, सामूहिक मैं क्यों बेइज्जती हूं। हाँ ये भी चुपचाप होके बैठा है। हाँ ये तो तुमने तो बोला, मैं तो तुम्हें तो वीरता का अवार्ड देता हूँ। उसको देखो, ऋषभ आया चुप्पी से बैठा, ये भी चुप्पी मार के बैठा है। तो बोलो ना बुलंद आवाज में, सर ये आंसर मुझे भी आया है। वी सेव टाइम, वी कैन गो टू द नेक्स्ट वन। सो नाउ यू राइट व्हाट, रिजेक्टिंग 5 by 8 since digit cannot be a fraction, so we go ahead with 5 only। तो अब नंबर बताओ कितना हो गया, नंबर है ना तुम्हारे पास 4x by 5, तो 5 by 5 कट गया। नंबर कैसे लिखोगे? Substitute like the values expression. Yeah. हाँ, so here the value is, यहाँ पे 5 हो गया और यहाँ पे 5 5 कट गया, तो कितना रहा 4, 45 आपका नंबर हो जाए। अभी 45 को टेस्ट करके देखो, a 2 digit number is 5 times the sum of its digit। 4 plus 5 is 9, 9 into 5 is 45, मैच करता है। and 5 more than twice the product, 4 5s are 20, 20 को twice करो 40, और ये होता है 5 more than, तो 40 से 5 जोड़ा तो अब आंसर करेक्ट है। चलो ये वाला करो, द टोटल कॉस्ट ऑफ, अब ये क्वेश्चन को पहले समझते हैं, उसके बाद assumptions वगैरह। पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है, कौन मुझे ये क्वेश्चन समझाएगा? आओ, कौन समझाएगा? एनीवन हु वुड ट्राई टू टेक अ लीड टू एक्सप्लेन मी दिस क्वेश्चन। जो इंग्लिश में लिखा है वही मत बोलना, पढ़ो और इस क्वेश्चन को से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनना है, फिर सॉल्व होना है। क्या दिया है? चलो आनिया बदलो तो बेटा, क्वेश्चन क्या बताया है। चलो चलो, कोई टेंशन नहीं आपको, कोई आपको गलत नहीं बोलेगा, मैंने बोला है बोलने के लिए। चलो आओ करते हैं एक साथ। हाँ तुम लोग मुंह में वो जो रह रहे थे ना, राम नाम जप रहे थे, वही जपते रहो, क्योंकि तुम्हें तो बोलना नहीं है, इसलिए वो बोल रही है, मत सुनना उसकी बात, उसे मैं और आनिया कर रहे हैं। हाँ चलो आनिया, आप और मैं सॉल्व करते हैं, बाकी सब लोग यहाँ प्रवचन बने, स्वामी वायर वायर गाते रहो। हाँ चलो आनिया बोलो। अच्छा नहीं, हम लोग ऐसे करेंगे, क्वेश्चन को क्या करना है वो छोड़ दीजिए, पहले क्वेश्चन समझते हैं। वायर की सर्टेन लेंथ दी हुई है, इतनी लंबी एक वायर है हमारे पास, है ना, और फिर क्या बोला है, बोलो बेटा। इसकी कॉस्ट है 200 रुपए, बहुत अच्छी बात है। आगे वायर अगर 5 मीटर बढ़ जाता, कहता है इफ द पीस वॉज 5 मीटर्स लॉन्गर, तो ये टैं का साइज कितना है, 5 मीटर, है ना। वायर अगर 5 मीटर बड़ा होता, आगे हाँ यही तो गलती कर दिया। देखो मैं बोलता था ना इंग्लिश को गलत पढ़ोगे। इफ द पीस वॉज 5 मीटर्स लॉन्गर, ज्यादा खरीद रहे हो तो दुकानदार आपको थोड़ा सस्ता भी तो करेगा ना, कॉमन सेंस विच इज नॉट कॉमन। अगर वायर 5 मीटर लंबा होता और ईच मीटर, प्रति मीटर 2 रुपए कीमत घट जाती,
व्हाइट वाला जो था ना बेटा, व्हाइट वाला था आपका पहला सिनारियो। उसके बाद क्या आया? उसके बाद आया येलो वाला सिनारियो, यानी कि अगर इफ ये वायर 5 मीटर लंबा होता एंड कॉस्ट पर मीटर कितना हो जाता? 2 रुपी लेस कर दिया जाता, द कॉस्ट ऑफ द पीस वुड हैव रिमेन्ड अनचेंज्ड। कॉस्ट ऑफ द पीस वुड हैव रिमेन अनचेंज्ड। इसका मतलब क्या है? कॉस्ट ऑफ द पीस वुड हैव रिमेन अनचेंज्ड मतलब इनिशियली आप कितना कीमत दे रहे थे इस वायर की? आप इनिशियली इस वायर की कीमत दे रहे थे 200 रुपए। अगर आप 5 मीटर एक्स्ट्रा वायर लेते हो, किस शर्त पे? कि प्रति मीटर 2 रुपए घटा दिया जाए, तब भी आप क्या कीमत दोगे? तो भी आपके मुंह में बजेगा हंसी, क्योंकि आपने तब भी देनी है 200 रुपए। बात समझ में आई? ये अमेजॉन जैसा है, कैशबैक दे रहा है आपको ज्यादा खरीदने पे। डिड यू अंडरस्टैंड? कितने लोग इस क्वेश्चन को डिकोड कर पाए अपनी मातृभाषा हिंदी या किसी भी अंडरस्टैंडिंग पे? अगर आप डिकोड नहीं कर पाए तो ये प्रॉब्लम आप 0 ले लोगे। अगेन आई एम सेइंग, डोंट ट्रस्ट मी, ट्रस्ट योरसेल्फ। कुड यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन? बोलो अति, समझ में आया? अगर आपको नहीं आया, नहीं किस लिए आ रहा है पता है? क्योंकि आप लोग मन में एक बात मान लेते हो, मुझे नहीं आता है। ये किस लैंग्वेज में लिखा है? बातें किस लैंग्वेज में करते हो? हाँ, क्रिकेट खेलते तो क्या है, लास्ट बॉल नहीं ना, लाबा। अच्छा, हमेशा हिंदी में ही बात करते हो, तो अंग्रेजी में कभी बात ही नहीं करते हो? अच्छा, तो फिर तुम छोड़ दो पढ़ना, क्योंकि फिर तो तुम हिंदी वाला पेपर अटेम्प्ट करना। चलो, इसका तो कंडीशन नहीं है। बाकी लोग, जो लोग अंग्रेजी में बात करते हो, यो ब्रो, क्रो, लाबो, तो आपके लिए इंग्लिश को तोड़ना पड़ेगा ना। दोनों साइड प्रॉब्लम है। देखो, ये हिंदी में बात करता है तो इससे इंग्लिश प्रॉब्लम होगा नहीं। तुम लोग इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हो या अपनी मदर टंग पे नहीं कर पा रहे हो, तो तुमसे भी नहीं बनेगा। हम लोग अलग जनरेशन के थे ना, हमको इंग्लिश भी आता है, हिंदी भी आता है, हम तो इसको तोड़ लिए। मैं तो इस प्रॉब्लम को इंग्लिश में पढ़ ही नहीं रहा हूं, मैं तो इसको हिंदी में पढ़ रहा हूं। एक सर्टेन लंबाई के वायर की कीमत है 200 रुपए। अगर वो वायर 5 मीटर और बढ़ा दिया जाए और उसकी प्रति मीटर की कीमत में 2 रुपए घटा दिए जाए, तो हमें सेम पैसा देना पड़ेगा। निकालना क्या है कि ये वायर कितना लंबा था, मतलब ओरिजिनली कितना लंबा था, और इसकी ओरिजिनल रेट पर मीटर मत बोलो, ओरिजिनल रेट क्या है। दुकान में जाके हम नहीं पूछते, भाई साहब इस दुपट्टे का रेट पर मीटर बताइए। सीधा बोलते हो रेट क्या है? मैडम 100 रुपए पर मीटर। वो बोलेगा रेट पर मीटर बताइए, और SI यूनिट्स में बताइएगा। भैया मैं तो फिजिक्स पढ़ रहा हूं ना, मैं ऐसे थोड़ी बात करते दुकान में। तो अननोन चीज पता चल गया। अननोन क्या है अभी? क्या, किसको अननोन लो? बोलो। लेट द ओरिजिनल लेंथ, करूंगा नहीं मैं, सिर्फ बताऊंगा। ओरिजिनल लेंथ बी इक्वल टू हाउ मच? x मीटर्स। x नहीं, x मेरा हेड है क्या? x मीटर्स। सो प्राइस फॉर x मीटर्स कितना है? ₹200। समझो ना, लेंथ का 200 रुपए दियो ना। लिखो मत तो लिखो मत, लिखना देखने से मेरा दिमाग चढ़ जाता है। समझो पहले इस प्रॉब्लम को, लिखना घर पे। प्राइस पर मीटर क्या है? प्राइस फॉर x मीटर्स कितना दिया आपने? 200। तो देयरफॉर आपको ये भी तो निकालना है ना, प्राइस पर मीटर। बताओ प्राइस पर मीटर कितना हुआ? x मीटर के लिए 200 रुपए दिया, प्रति मीटर कितना होगा? हाँ, रुपीस पर मीटर, रुपीस पर मीटर, ठीक है ना। 200 रुपीस पर मीटर। समझ में आया? अब कंडीशन देखो, ATQ रिवाइज लेंथ कितना है? वाह, x+5 और रिवाइज्ड प्राइस पर मीटर। पर मीटर देखा 200 डूब मरो यार, 200 फीट से कूद के डूब मरो। रिवाइज प्राइस पर मीटर, जो ओरिजिनल था उससे 2 मीटर 2 रुपए या कितना, 2 रुपए कम करने बोला था। तो 200/x -2 रुपीस पर मीटर। तो इसका प्राइस कितना हो जाएगा?
x प्लस 5 मीटर वायर को आपने 200 बाई x माइनस 2 रुपए की कीमत से खरीदा। ये प्राइस हुआ ना इसका, एन ना मार दिया, 2 नंबर डाल दिए इसमें, और एक और कितना रख दिया, 1 नंबर। सवाल कहता है 1 और 2 बराबर है ना, यहां पे भी देखो 200, तो ये ओरिजिनल प्राइस था 200, और ये नई कीमत से नई लेंथ, नई कीमत से नई लेंथ लेने में भी कीमत में कोई चेंज नहीं होता है, अंतर नहीं है, बदलाव नहीं है। तो भाई क्या ठहरा कि 1 और 2 बराबर है ना, इक्वेट कर ले 1 और 2 ताऊ, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। समझ में आया? अब ये चीज आपका तभी हो सकता है जब आप क्वेश्चन, इनमें आप लोग क्या करोगे, आप इस पे पहले मरते हो, मत मरो, उस पे मरो पहले। ये चीज नॉट यू। Sometimes I was, when my wife we were discussing, अभी जो ये वॉर लेके इतना स्टूडियोज में डिस्कशन होता है ना, तो अब कभी भी रिपब्लिक टीवी में देखना है, पर्सन कम्स, एम्बेसडर वोरा करके, he has been ambassador in many countries for 50 years, डिप्लोमेटिक रोल में रहा है, एज हो गया है आंखें 84 में। See the words, look at those army generals and all who come, look at the way they speak English and the words they use, the words they mince। मैं वही कह रहा था कि अगले जनरेशन में ऐसी बातें करने वाले लोग आएंगे। पहला बात है तो फ्रीली कोई बात ही नहीं करेगा इंटरव्यू में, कितना सुंदर बोलता है, एक वर्ड कह रहा है, यू कैन मेक देम अंडरस्टैंड बट द बफून्स डोंट अंडरस्टैंड। बफून, डू यू नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड बफून? बंदर। कितना सुंदर बोलता है, एंड लुक एट देयर कमांड, वो हिंदी में भी बोल रहा है, वो इंग्लिश में भी बोल रहा है। आप रोज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की एक ब्रीफिंग होती है, वहां पे इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी श्री विक्रम मिस्त्री साहब बात करते हैं, एक बार हिंदी में बोलते हैं, एक बार इंग्लिश में बोलते हैं। द टू लेडी ऑफिसर्स आर ब्रीफिंग इन इंग्लिश हिंदी, बट लुक एट दैट पर्सन, दे आर इंडियन फॉरेन सर्विस क्वालिफाइड, और उस हिंदी भाषा का प्रयोग देखिए, एंड लुक एट द इंग्लिश दैट दे स्पीक, करेक्ट, वेरी नाइसली। आस्क योरसेल्फ, I'm now in grade 10. If somebody gives me an opportunity, can I speak in that manner how it is being spoken? TEDx देखा करो। TEDx आपको ये सिखाता है, बैठ के ना वो स्टैंड अप कॉमेडी जो आता है ना, आधा वल्गर लैंग्वेज वाला, वो मत देखो, TEDx देखो कैसे बात करता है। TEDx में पूरे स्टेज आपके सामने है। Speaking in front of a dais is very easy because your body is covered. We sometimes feel lot of confidence when our body is covered, मतलब हमें लगता है डर नहीं है। जब आपको ऐसे माइक्रोफोन दे देगा ना एक, और हाथ में सिर्फ एक रिमोट देगा, होल स्टेज इज योर्स। हाउ यू वॉक, हाउ यू टॉक, हाउ यू कनेक्ट। शायद आप लोगों ने वैसे स्टेज देखे कि नहीं पता, आपके सामने 2 मॉनिटर्स रहते हैं, ऐसे 48 इंच के 2 स्क्रीन, 3 स्क्रीन रहेगा, बिकॉज वट एवर इज गेटिंग डिस्प्लेड ऑन योर बैक यू कैन सी, राइट? सो यू कैन सी दोस थिंग्स इन फ्रंट ऑफ यू। आपके सामने मॉनिटर्स रहते हैं, जैसे आप चेंज करोगे वहां जो दिख रहा है वही यहाँ पे, एंड वन बीकन लाइट विल बी फॉलोइंग यू, हाउ यू टॉक। That's very essential. Unless and until you, that's why these are related to that only. हमारे टाइम पे इंग्लिश रीडर जब इंग्लिश पढ़ता था ना, तो द टीचर यूज्ड टू मेक अ चाइल्ड स्टैंड अप इन द क्लास, क्योंकि वो रीडर का नाम ही है रीड अलाउड। आई डोंट नो इन योर स्कूल्स whether this is practiced now. Suppose an English lesson is going on, somebody will be asked to get up and read, and there will be 2-3 mischievous guys who will be looking that side, this side, then the ma'am will say, stop Akshat, start reading, Vedant start reading। अब वेदांत को तो पता ही नहीं अक्षत कहाँ पढ़ रहा था, तो get out of the class हो जाते हो आप। और जब पढ़ते हैं ना, the teacher used to take care, it's not about the total cost of a certain piece of length and wire, ये क्या हुआ, ये तो कोई सुनेगा ही नहीं आपकी बात। मॉड्यूलेशन कहाँ है आपका? the total cost of a certain piece, where to stress, where to pause, how to talk। ये आपके लाइफ का गेम चेंजर होगा। नौकरी में कोई ये सब सॉल्व नहीं करता है, बात करना आना चाहिए, किसके साथ और कैसे। ग्रेड 8 को पढ़ाना, ग्रेड 12 को पढ़ाना, इंजीनियरिंग के बच्चे को पढ़ाना, कंपनी में जाके किसी चीज बताना, सब ऑडियंस अलग है। ये हेल्प, ये लीजिए। Spend time on quality things. I'm not asking you to be politically inclined or something, but listen how people are speaking. Listen how people do a satiric remark.
ये CNN के जो रिपोर्टर्स होते हैं कैसे बात करते हैं, अभी बहुत ग्रुपिंग चल रहा है ना, द पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर वाज कॉट बाय द वे ही स्पोक। लुक एट हाउ द, हमारे तरह लड़ते नहीं है रिपोर्टर, आई अंडरस्टैंड दैट, बट मिस्टर हाई कमिश्नर वुड यू लाइक टू आंसर, रुक जाना कहीं पे, वो चीज आना है। अगर वो आएगा तो ही आप पैकेज बनोगे, वरना आप पैकेज नहीं बनोगे, वरना ये प्रॉब्लम हमेशा आपको धुंधलाएगा। और तो टाइम नहीं है, कुछ दो और थे एज वाले, अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है। यहां तक कीजिए, यू आर एनीवे गोइंग टू गेट दैट एज प्रॉब्लम आल्सो, बट प्लीज स्टार्ट डूइंग। Maybe next class we will take our new chapter, but we'll just do 1 or 2 more problems of quadratic equations, word problems karenge, and then we'll proceed to our new chapter. Righto?